پڑھتی ہوں. نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بہنوں، اب جو ہمارے آیتیں آ رہی ہے وہ کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ طلاق کے بارے میں. یہ جو طلاق کے جو بارے میں اور یہ جو نکاح کا جو نکاح طلاق، یہ سب ہماری زندگی، پارٹ آف زندگی ہے اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہنوں. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ باتوں کو جانیں کہ آج ہم معاملات کے بارے میں جانیں گے. دیکھو بہنوں، قرآن میں آپ لوگ ہم سب نوٹ کریں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. نماز کی آیتیں بہت ہے کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، بہت بار آتا ہے قرآن میں. طریقہ نہیں آتا ہے نا، وہ حدیثوں میں ملتا ہے. روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے پر طریقہ بھی ہم کو اتنا ڈیٹیلنگ نہیں پتا. اسی طرح بہنوں زکوٰۃ کا دیکھ لو، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے پر ڈیٹیلنگ حدیثوں میں آتا ہے. مگر یہ جو طلاق کے بارے میں نا بہنوں، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اس کا طریقہ بھی قرآن میں بہت ڈیٹیل میں ہے. ابھی کتنی ساری آیتیں بہنوں، ابھی اب پڑھ رہے تھے نا، اوکے، ابھی پڑھ رہے تھے تو سمجھ میں آتا کہ بار بار طلاق 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 کتنا سمجھایا جا رہا ہے، کتنا بتایا جا رہا ہے بہنوں. یہاں پہ کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے، طلاق کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، اس کو جان کے رکھنا ضروری ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف، معاملات ہے یہ، ہے نا. ہم الحمدللہ ابھی ہمارے ذہن میں بہنوں جیسے کہ نکاح کے بارے میں بھی ہم کو، اگر لڑکا لڑکیوں کو اگر دیکھو تو زیادہ ان کو کچھ نہیں پتا. اچھا، اور اگر ہم ہمارا معاشرت دیکھیں گے، ویسٹرن کنٹری ہے نا، یہ سب دیکھو بہنوں کہیں نہ کہیں آج ہمارے بچے شادی میں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. اول تو شادی سے بھاگتے بھی ہے، بہت سارے لڑکے ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے، لڑکیاں بولتی ہیں ہم پیروں پہ کھڑنا چاہتے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز بہت دیر سے بھی ہو رہی ہے. اس کے بیچ میں اگر لڑکا لڑکی گناہ کر رہے، غلط کر رہے، وہ سوسائٹی کو دکھتا نہیں ہے. سوسائٹی کیا دیکھتی ہے کہ ارے اس سیکنڈ شادی کر لیا، سیکنڈ شادی کر لیا. سیکنڈ شادی کرنا اگر کوئی معلوم پڑتا ہے کہ کس نے سیکنڈ شادی کر لیا تو ہم لوگ کو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کینسر ہو گیا، ہے نا. اس کے بارے میں ہم لوگ اتنا ہو ہا کرنے لگ جاتے کہ ارے شرم نہیں ہے، کیسا کر لیتا یہ وہ. پتا نہیں وہ سامنے والے انسان کے بارے میں ہم کیا کیا بول دیتے، کیا کیا سوچ لیتے. اگر اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے تو بہنوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ایسے ہمارے پروفیٹس ہیں جنہوں نے بہت سارے نکاح کیے ہیں، دو دو تو کیے ہی ہے نا الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 زوجہ ہے نا الحمدللہ، اس میں سے بہنوں صرف ہمارے حضرت عائشہ تعالی عنہا تھے جو کنوارے تھے. باقی کے اگر تم سب عورتوں کو اگر دیکھو گے، ان کے جتنے بھی ازواج تھے وہ یا تو بیوہ تھے یا تو طلاق شدہ تھے، مطلب وہ کہیں نہ کہیں شادی شدہ تھے بہنوں. صرف حضرت عائشہ تعالی عنہا واز ورجن، واز کنوارے بس. باقی سب شادی شدہ، طلاق شدہ تھے بہنوں. سب کتنے تو بار شادی، کسی کی ایک بار، کسی کی 2 بار ہو چکی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ تعالی عنہا، جن کی آلریڈی 2 بار شادیاں ہو چکی تھی. 40 سال کے تھے ہمارے نبی، اس ٹائم پہ 25 سال کے تھے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اگر آج ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی لڑکا ایسا کرتا ہے تو اگر دیکھو نبی کا تو کسی کو یاد نہیں آئے گا وہ ٹائم پہ. سب لوگ کیا بولیں گے؟ ارے رے، ہے نا، کیا بولیں گے؟ سوچ کے دیکھو وہ عورت کو کتنا بلیم کریں گے کہ بھائی اسی نے کچھ کر دی، ہے نا. میرا جوان بچہ، کوارا بچہ، 25 سال کا جوان لڑکا، وہ 40 سال کی عورت نے کچھ تو کر دی، ہے نا، پھانسا کر دی. کیا کیا ہم لوگ بلیم کر لیں گے. یہ سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہے نا. اور دیکھنے جاؤ تو بہنوں وہ زمانے میں، عربوں کے زمانے میں اٹ واز ویری نارمل، ویری کامن کہ بھائی
चलो भाई लड़का लड़की को साथ में रहना है, जीना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत जरूरी है। जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे, और जन्नत में जब हम जाएंगे तो एज अ कपल वहां पे रहेंगे, सब जोड़े जोड़े में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब हमको पता है ना। मगर बहनों कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में इसके बारे में बहुत रिलैक्सेशन दिया है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह रह सकते हैं एक ही छत के अंदर, एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हैं, साथ लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर अल्लाह ना करे अगर ऐसा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस ऐसा कुछ है, तो कोई क्या कर सकता है बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने रास्ते भी खोले हैं। कहीं ना कहीं औरतों को लगता है कि देखो तलाक जो है वो मर्द ही बोलता है, मतलब मर्दों को ही अल्लाह ताला ने ये दर्जा दिया है। ऐसा नहीं है बहनों। यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने जो तलाक का भी दिया है वो तो 3 बार बोल रहा है, 3 महीने, वो आएगा पूरा डिटेल में। मगर औरत भी खुला ले सकती है, वो मेहर का कुछ हिस्सा दे के वो खुला ले सकती है। तो मतलब औरतों को भी राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और यहाँ पे और एक बात समझ में आती है कि अल्लाह का एहसान और करम है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने तलाक के लिए मर्दों को ही चुना है। हम लोग औरतें बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग कितने टाइम कंप्लेन ही कर लेते हैं ना। कितना ऐसा होता है बहनों कि शौहर इतना अच्छा देखता है, कभी ना कभी कुछ गलती करता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लाइफ में कभी सुख देखा ही नहीं है, तुमने सिर्फ मुझे ये दुख ही दिया है। यानी उसकी सब अच्छाई भूल जाते हैं। ये हदीसों में आता है बहनों। औरत जो है ना वो ऐसी नेचर की है, बहुत इमोशनल, बहुत जज्बाती। और पीरियड्स में या कुछ भी ऐसा हार्मोन्स हमारा ऊपर नीचे होगा, चिड़चिड़ हो जाएंगे, तो फौरन हम लोग क्या करेंगे तलाक के लिए। मतलब अगर औरतों के साथ अगर वो होता, वो अगर औरत को वो होता कि हाँ तुम तलाक दे सकते हो, तो कितनी तलाकें हो जाएगी सोच के देखो। वो तो अच्छा है कि आदमी जो है ना वो आदमियों के अंदर थोड़ा वो रहता है, वो स्ट्रेंथ रहती है, सब्र रहता है, बर्दाश्त रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग है ना इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। वरना औरत के हाथ में होता तो आए दिन तलाकें हो जाती है ना। अगर बहनों अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि तलाक की चीज भी अल्लाह ने किसको दिया है बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने तलाक का जो फैसला भी है मर्द को दिया। अगर सास ससुरे को दे देता, हाँ, अगर औरत के माँ बाप को दे देता तो कितनी पार्शलिटी होती। कभी भी सास ससुरे बोलते कि भाई तेरी बहू को तलाक हम लोग दे रहे, है ना, तो तलाक कभी भी दे देते। या तो माँ बाप के हाथ में होता तो माँ बाप तलाक दे देते। समझ में आ रहा है। तो अल्लाह का एहसान और करम है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया है कि ये जो तलाक का जो ये है अथॉरिटी है ना, वो किसके हाथ में दिया है, मर्द के हाथ में दिया है। और अगर कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पे औरत को लगता है कि मैं नहीं रह सकती, तो कुरान साफ साफ कहता है कि हाँ यू कैन टेक खुला ऑल्सो, है ना। मगर ये जो हम लोगों ने बहुत इसको है ना कहते हैं कि नहीं ऐसा वैसा, तो ये सब चीजों से थोड़ा बाहर आ जाए। देखो बहनों तलाक जो है ना सब हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अगर अल्लाह को है तो वो तलाक है। नो डाउट अल्लाह को तलाक बिल्कुल नहीं पसंद, नापसंदीदा अमल है। इनफैक्ट शैतान को बहुत पसंद है। शैतान तो उसके चेलों के साथ है ना उसकी एक मीटिंग होती है रातों में जहाँ पे वो सबसे पूछता है कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, नमाज छुड़वाए, शराब पिलाए, जिना करवाए, वो इतना खुश नहीं होता है। मगर जहां वो सुनता है कि मतलब मियाँ बीवी के बीच में वो किसी का तलाक करवा दिया, झगड़ा करवा दिया, तो वो बहुत खुश हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये काम शैतान को बहुत पसंद है, अल्लाह को नापसंद है। मगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं बहनों जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है। अब मैंने क्या कहा, कितनी औरतें और कितने मर्द थे जो तलाक देते थे, रीमैरी करते थे, ये सब जायज है बहनों। मगर कभी ऐसे हालात हो गए कि एक छत के नीचे एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर सकते, ओके, ऐसा हो जाता है, तो वहां पर अल्लाह तबारक ताला ने क्या दिया है, आसानी दिया है। हाँ। और यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो दोनों का साथ दे बहनों। देखो अल्लाह ना करे, देखो सहाबाओं के साथ ऐसा हुआ था कि एक सहाबा ने अपनी बीवी को रंगे हाथ किसी और मर्द के साथ देख लिया था। ओके। बहुत गंदी पोजीशन से उन्होंने अपनी बीवी को देख लिया। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे,
सोचो बहनों, तलाक के अलावा इज देयर एनी अदर ऑप्शन? तो उन्होंने तलाक दे दिया अपनी औरत को, तो ये जायज है ना। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते अरे सबर करो, बर्दाश्त करो, नहीं। औरत खराब है, उसने शौहर के होते हुए ऐसे नाजायज हरकतें की है। तो ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे ये तलाक जो नापसंदीदा है, मगर वो क्या हो जाता है, हलाल हो जाता है। ओके, तो पहले हम ये पूरे चीज को समझे। अब जो है हम आयतों पे आ जाते हैं बहनों। कल हमारी आयतें 225 तक हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आयत 226 पर आ जाते हैं। जो बहनें न्यू है वो प्लीज स्क्रीन पर देखे। ओके, अच्छा, जो मैंने अब तक जो पूरा समझाया वो सब बहनों को सब क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग है ना ऐसी सोसाइटी में रहते जहाँ पे हम जैसे सुनते ना तलाक है, अरे खुला है, तो हम लोग उस औरत के बारे में, उस मर्द के बारे में बहुत ही गलत इमेज बना लेते हैं बहनों। हर एक को जिंदगी जीने का हक है, हर एक को आगे बढ़ने का हक है। क्या कितने बार ऐसा होता है, कोई लड़कियों की मंगनी टूट जाती है, हम लोग सोचते हैं लड़की का फॉल्ट है, लड़की का बुरा इमेज बना लेते हैं और फिर उसको कभी कहीं शादी करने नहीं देते, हम लोग ही इसको बदनाम कर देते हैं बहनों। याद रखना, ये सब कामें हमको नहीं करना है। ये गीबतें, ये चुगलियां बिना देखे बिना सुने हम लोग ही फैला देते हैं बहनों, अफवाहें। ये सब हमारी सोसाइटी को बर्बाद करने के काम हम लोग कर रहे हैं। देखो बहनों, हम सब भाई बहन है, हम सब अपने अपना अच्छाई अपने मतलब सब अच्छा देखे। ओके, और सबको जीने का हक है बहनों। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को बुरा कर रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं करना है बहनों, वरना क्या हो जाएगा। आज देखो बहनों, निक्के को हमने कितना मुश्किल बना दिया, जीना इजी हो गया, मैंने कल भी बताई थी। उसी तरह बहनों, आजकल बच्चे कैसे हो रहे हैं पता है, आउट ऑफ वेडलॉक हो रहे हैं बहनों, मतलब जीना से बच्चे हो रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री चले जाओ तो पहले वो लोग बच्चा जनते हैं, उसके बाद सोचते हैं निकाह करना नहीं करना, उसके बाद करते। तो सोचो बहनों, ये कयामत के असरात में से एक असरात है बहनों, कि हराम बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, वो वर्ड बोलते हुए भी खराब लगता है ना, हराम के बच्चे पैदा हो रहे हैं बहनों। सोचो, जो बच्चे हराम से पैदा हो रहे होंगे वो कैसे सही हो सकते हैं बहनों, सोच के देखो। जो हराम से हो रहे, वो क्या दीन पे चलेंगे, वो क्या दीन फैलाएंगे, वो क्या करेंगे, वो बच्चों के अंदर क्या असर होगा, सोच के देखो बहनों। आज ये वेस्टर्न कंट्री सरोगेसी को ला रही है, लिव इन रिलेशनशिप को ला रही है, क्या नहीं हो रहा है बहनों। और अगर मैं और तुम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी गलत ट्रैक पे चले जाएंगे बहनों। आज सोसाइटी बहुत खराब हो रही है ना। कहीं ना कहीं हमको हमारी सोसाइटी को प्योर करना है। किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी का तलाक हो गया, किसी का कोई बेवा हो गई, किसी का कुछ भी हो गया, उसको रीमैरी कराओ बहनों, उसको वापस से शादी कराओ। कोई उसकी जिंदगी है, हर एक को पार्टनर की जरूरत होती है। उसको इतना बुरा मत समझो कि अरे कुछ गलती इसकी होगी, यही खराब है, यही वो है, यही ऐसी है। दोनों तरफ की स्टोरी जानना बहुत जरूरी है। बदगुमान हमारे अंदर बहुत है, पता है बहनों। बोरी, आई थिंक बोरी एक सोसाइटी है, जैसे अरबों में भी है, कि वो लोग है ना बहनों, औरत या मर्द जिसका भी तलाक होता है, जिसका भी खुला होता है, जिसका भी कुछ भी होता है, उसको वापस शादी करा देते हैं। और उसके अंदर कोई ऐब नहीं देखते वो लोग बोलते हैं वेरी नॉर्मल, उसके साथ नहीं हुआ किसी और से शादी करा लेते। मतलब एकदम नॉर्मली उसको लेके चलते, समझ में आ रहा है। हम लोग ही उसको बहुत अबनॉर्मल बना लेते कि यहाँ तेरी शादी हुई, यहाँ तेरा जनाजा निकलेगा, मतलब तू आना ही नहीं, वापस तोड़ के ही नहीं आना। वो बेचारी 50-50 साल तक भुगत रही है वहां पे, और उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता। ये इस्लाम नहीं सिखाता ना बहनों। अगर सोचो, शौहर शराबी है, कबाबी है, जिनाकारी है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, और लोग उसको बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए वहीं पे रहना, वहीं पे झेलना, वहीं पे सब करना, यहाँ नहीं आना। वो औरत का क्या होगा बहन? इस्लाम क्या जुल्म बता रहा है? यहाँ पे तो अल्लाह तबारा ताला औरत को राइट्स दे रहा है, हक दे रहा है कि उसको जीने दो, उसके साथ ऐसा जुल्म मत करो। उसको कितने सारे हुकूक कल भी बता रहे थे, आज भी वही आ रहा है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर ब्लेस्ड टू बी मुस्लिम, है ना। इस्लाम इतना बेहतरीन मजहब है कि हमको इतने अच्छे अच्छे जो है ना बातें बताएगा इंशाल्लाह। तो गौर व फिक्र करे बहनों।
कौन सी आयत है? आयत नंबर 226। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं बहनों, अपनी औरतों को इला कर देते। अब ये भी एक कसम होती थी बहनों, वो जमाने में, अरबों के जमाने में, जब आदमी गुस्से में आता था या आदमी जो है वो एकदम भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है, नाराज हो जाता है, तो वो मतलब अरबों में ये बहुत आम था, यहाँ पे हम नहीं देखते। तो आदमी ना कसम खा लेता है कि मैं तेरे पास अभी जो है वो कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, मतलब हम बिस्तरी नहीं करूंगा, सेक्स नहीं करूंगा। ओके, तो ऐसा वो मर्द क्या करता था? कसम खा लेता था। ओके, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तर्के ताल्लुक। ओके, तर्क यानी छोड़ना, ताल्लुक यानी रिलेशनशिप, यानी कि मैं तेरे से जो भी फिजिकल रिलेशनशिप है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? तर्क कर रहा हूँ, यानी कि मैंने कसम खा लिया कि मैं तेरे पास आके जो है वो नहीं सोऊंगा। तो गुस्से में और नाराजगी में शौहर क्या करता था? कसम खा लेता था अपनी औरतों से। ओके, अब जब ये कसम खा ले तो इसकी जो वेटिंग पीरियड है या इद्दत है वो कितना है? 4 महीने है। ओके, मैक्स टू मैक्स 4 महीने है कि इंसान जो है वो कसम खा के वो गुस्से में है। ओके, अब वो क्या कर लिया? गुस्से में बोल दिया, मगर कहीं ना कहीं जब ठंडा हो जाता है या कुछ वक्त चले जाता है तो इंसान जो है ना, उसको मोहलत तो है 4 महीना, मगर कभी ना कभी बशर है ना, उसको अफसोस होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना, ऐसा कसम नहीं खाना चाहिए था। अब वो 1 महीना या 15-20 दिन भी नहीं हुए कि अब वो मर्द बोलता है कि नहीं, एक ही छत के नीचे है। ओके, मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे, तलाक नहीं हुई है बहनों ये। ओके, मगर उसने कसम खा लिया कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, हम बिस्तरी नहीं करूंगा। अब उसको कहीं ना कहीं नदामत हो रही है, गिल्टी फीलिंग हो रही है, तो वो वापस पलट सकता है, नो डाउट वो आ सकता है, मगर उसका वेटिंग पीरियड कितना था? 4 महीने। अब 4 महीने के अंदर अगर वो आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कफ्फारा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कफ्फारा। कफ्फारा हमने कल पढ़े थे ना, 10 मिस्किन को खाना खिलाना, 10 मिस्किन को कपड़े देना, या तो फिर 3 रोजे रखना, उसको क्या करना पड़ेगा? कफ्फारा देना पड़ेगा। ओके, और फिर अगर वो लौटता है तो बेशक अल्लाह ताला कैसे है? गफूरुर रहीम है। तो यहाँ पे बंदे ने गुस्से में, नाराजगी में कसम खा लिया कि अब मैं नहीं आऊंगा, तर्क मतलब तर्क कर दिया था ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को। मगर अगर 4 महीने के अंदर अंदर आ जाए तो ठीक है, कफारा दे दे और आ जाए। अल्लाह ताला जो है वो कैसा है? बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मगर 4 महीने हो गए बहनों, 4 महीना हो गए, अभी तक वो नहीं आया। हाँ, वो गुस्से में अड़ा हुआ है, नहीं आ रहा है, एक ही छत के नीचे है, बीवी के पास नहीं आ रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? और अगर वो अज़म कर ले तलाक का, तो बेशक अल्लाह ताला क्या है? खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ बहनों की, अभी जो है उसने 4 महीने का जो वेटिंग पीरियड था वो भी खत्म हो गया। तो अभी वो क्या करेगा बहनों? तो यहाँ पे जो है इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं बहनों। ओके, 4 महीना हो गया, उसका वेटिंग पीरियड 4 महीना था, उसके अंदर अंदर आ जाता तो ठीक था। अब 4 महीने के ऊपर हो गया, फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या? उसने अपना जहन बना लिया कि अब वो उसकी बीवी के साथ नहीं रहने का है ना। तो अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है? कोर्ट जाके या तो किसी इमाम के पास, मौलाना के पास जाके वो क्या कर सकता है? तलाक की बातें वहां से शुरू कर सकता है। ओके, तो ये जो है इला के बारे में, ये पूरा जो वाकया है ये किसके बारे में है? इला के बारे में है। ओके, इला मतलब क्या? मैं वापस से बता देती हूँ। इला मतलब क्या बहनों? जहां पे आदमी जो है वो कसम खाता है कि वो बीवी के साथ क्या नहीं करेगा? ताल्लुक नहीं रखेगा, यानी कि मैं जो है वो कसम खाता हूँ कि मैं ये बीवी के साथ नहीं आऊंगा, मतलब हम बिस्तरी करने नहीं आऊंगा। ओके, अब देखो बहनों, कभी कभी क्या होता है ना कि ये अच्छा, ये जो इला है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। ओके, हमारे नबी की जो अजवाज थी उन लोग ने एक बार नान नफका, यानी कि खाने पीने का जो बोलते ना कि एक्सपेंसेस बढ़ाओ, उसको बोलते हैं नान नफका, उसको बढ़ाने के लिए कहा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने भी अपनी बीवियों को क्या कर दिया? इला कर दिया। ओके, इला कर दिया कि मैं किसी के पास क्या नहीं करूंगा? हम बिस्तरी के लिए नहीं आऊंगा। तलाक नहीं होता है बहनों। ओके, ये तलाक नहीं होता। यहाँ पे जो है एक छत के नीचे रहते, सिर्फ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। और हमारे नबी ने भी अपने अजवाज के साथ किया था। सूरह अहज़ाब में इसका डिटेलिंग आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
एक महीना जो है वो रुक गए और एक महीने के बाद वो वापस से रुजू हो गए और फिर उन्होंने क्या कर दिया, कफारा दे दिया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दोनों आयत है सबको समझ में आया बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, पर जो ये मुझे समझ में नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा ये अहद लिए थे तो उस वक्त आयत कोई नाजिल हो गई थी ना कि ऐसा आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं, वो कर सकते थे, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमारे नबी का साथ दिया था। इनफैक्ट साहब जितने भी हमारे अजवाज है ना, उनको वार्निंग मिली थी कि अगर तुम ये नान नफका चाहते हो, अगर तुम ये दुनिया चाहते हो, तो हाँ तुमको हाँ हाँ तुमको हाँ, ये जो है आयत वो उतरी थी। हाँ तुमको जो है वो सब मिल जाएगा, दुनिया मिल हाँ हाँ जाएगी, मगर नबी से तुमको क्या करना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा। तो सब बीवियां डर गई, सब हाँ बीवियां इतनी डर गई, इतनी डर गई, तौबा तिल्ला करे और बोले इसके बाद हम लोग कभी नान नफके का बढ़ाने हाँ, का नहीं और बोलेंगे। फिर जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं रहेगा, हाँ ऐसे हाँ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आएगा इंशाल्लाह आगे, तो मैं इंशाल्लाह। वो हाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखो बहनों क्या आयत उतरी थी कि नबी नबी का साथ अल्लाह ने दिया। ओके, और उनको क्या कहा कि तुमको चाहिए ना दुनिया, दुनिया मिल जाएगी, पर पहले नबी से तलाक ले लो। तो जो जितने भी अजवाज थे वो बहुत डर गए थे, मतलब इतना बड़ा टाइटल जाना, हाँ नबी की बीवी का टाइटल और वो ऑनर, वो इज्जत और वो मर्तबा सब हटना, मतलब किसको बोलते हैं। तो सब बीवियों ने क्या क्या अडॉप्ट किया, आखिरत को पसंद किया। हालांकि बहनों वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको लाखों रुपए चाहिए, लग्जरीज चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा नान नफका बढ़ाने के लिए कहा था। और इसमें भी अल्लाह ताला ने देखो किसका साथ दिया, पता है, नबी का साथ दिया। कि पहले से उनको इतने हालात है, उनको इतना कुछ काम करना है, दीन का इतना कुछ करना है, उसके ऊपर अगर तुम बीवियां भी अगर से डिमांड करेंगे तो नबी क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि उनको अपने फैमिली के लाइन से टेंशन नहीं थी, ऐसा नहीं है बहनों, उनके साथ भी था। बशर है ना बहनों, समझ में आ रहा है, तो उनके साथ भी ये सब मामलात हो रहे थे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है ये दोनों आयतें समझ में आ गई। अगर मजाक में बोल दिया तो फिर कफारा देना होगा। मजाक में देखो बहनों, मजाक भी नहीं है बहनों इस्लाम में, मैं फ्रैंकली बता देती हूँ। 3 चीजों के बारे में आता है कि हंसी हंसते हंसते भी, हंसी मजाक से भी कर दोगे ना तो हो जाएगा। एक तो निकाह, एक तो तलाक, और एक है कि गुलाम को आजाद करना। ओके, इसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी आयतों को हंसी मजाक में मत लो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर कोई वली, ओके, अगर कोई बाप किसी लड़के के सामने हंसते हंसते मजाक करते करते बोल रहा है कि ये ले मेरी बेटी, ये तेरी हो गई, मतलब समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है कि ये ले तेरे निक्के में दे रहा हूँ, हंसी मजाक करते करते, तो ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है, वहां पे निकाह हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह हंसते हंसते मर्द जो है वो तलाक दे देगा तो तलाक हो जाएगी। और उसी तरह हंसते हंसते अगर कोई आका अपने गुलाम को कहता है कि मैंने तेरे को आजाद कर दिया, तो आजाद हो जाएगा। इसलिए इसलिए इस्लाम इज अ सीरियस रिलीजन बहनों, रूल इज अ रूल। ओके, और ये रूल्स ऐसे है, मतलब ये लॉ है ना, और इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई जो है ना वो कमी पेशी नहीं है बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। सो टेक दिस सीरियसली करके अल्लाह तबारक ताला हम सबको बता रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इलाका हो गया बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने के अंदर, अच्छा ये 4 महीने के बारे में और एक बात बताते चलूं कि हजरत उमर ताला अनहु जो थे बहनों, देखो उनकी बोलते ना कि इसमें शर्म नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है कि वो एक मर्तबा हजरत उमर ताला अनहु अपने इलाके में जो है वो रात को है ना वो बोलते ना इंस्पेक्शन करते थे, मतलब वो देखते थे रातों में जाके गांव, मतलब गलियों में वगैरह के सब सही है कि नहीं। तो वो ऐसा इंस्पेक्शन के लिए निकले थे। तो वो देखे एक लड़की जो है ना अपने शौहर को याद करके गुनगुना रही है, कुछ तो ऐसे गाने नजम गा रही है। ओके, नात गा रही है, नजम गा रही है, जो भी है, अपने शौहर को याद करके गा रही है। तो जब पूछा गया कि किसी और से कि भाई ये कौन औरत है, तो कहा कि इसका शौहर जो है ना वॉर में गया है, जंग की जगह पे गया है और नहीं लौटा है, तो उसकी याद में वो गा रही है।
تو حضرت उम्म तला अनहु जो थे वो अपनी बेटी के पास गए, हजरत हफ्सा तला अनहा जो हमारे नबी की वाइफ भी है, ओके, और उनसे जाके पूछा कि एक मियाँ बीवी जो है वो कितने दिन तक, ओके, बीवी खासकर, ओके, बीवी के बारे में हक जानना था उनको कि एक औरत जो है वो कितने अरसे तक अपने मर्द के बगैर रह सकती है। तो देखो यहाँ पे वो कितना मतलब कितना एक प्राइवेट सवाल कर रहे हैं, किससे? एक तो नबी की बीवी, ऊपर से उनकी बेटी, एक प्राइवेट सवाल, एक पर्सनल सवाल है कि एक औरत को मतलब कितना टाइम के तक जो है वो बिना सेक्स के वो रह सकती है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। तो वो बीवी कहती है कि हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि 4 महीने, ओके, सिर्फ 4 महीने, 4 महीने वो औरत कंट्रोल कर सकती है। 4 महीने में उसको एक बार तो मतलब उसकी हाजत को पूरी करना ही करना है। तो जब ये बात हजरत उमर तला अन्हु को मालूम होती है, क्योंकि वो औरत याद करके अपने मर्द को गुनगुना रही है, तो वो समझ गए। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने क्या किया, इस रूल को पास कर दिया कि जो भी जंग में जाएंगे, वॉर में जाएंगे या बॉर्डर्स में रहेंगे, वो हर 4 महीने में एक बार अपनी बीवियों के पास जरूर आए और उनकी हाजतों को पूरा करे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आदमी ने कसम तो खा लिया, मगर 4 महीना उसकी मुद्दत है। 4 महीने में वो औरत के हक को मार रहा है। औरत का एक हक है, उसको उसको पूरा करना उसकी उसकी उसके ऊपर वो हक है। अगर वो नहीं पूरा कर रहा है तो 4 महीना बस, उसके बाद उसको उसका पूरा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो उन लोगों को जाना पड़ेगा कोर्ट वगैरह में, और अगर वो तलाक दे दे तो ठीक है, मतलब कि क्या होएगा, औरत का हक तो कहीं अदा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? अगर वो छोड़ देगा तो वो कहीं और रीमैरी कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 महीना जो है इसी से पता चलता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं बहनों, जहाँ पे आयत नंबर 226 और 227 हो चुका। अब आयत नंबर 228 में आ जाते हैं। बाजी मैं गुस्से से एंग्री से बोलती हूँ, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ओके, इंशाल्लाह। जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं और मुतल्लका यानी कि जो डिवोर्स वुमन होती है, ओके, अभी ये डिवोर्स, अभी समझ जाओ कि उसने जो है 4 महीने तक नहीं आया, अब डिवोर्स हो गया, अब क्या करेंगे? जो जो डिवोर्स वुमन होती है उसका वेटिंग पीरियड या उसकी इद्दत कैसी है बहनों, कि वो अपने वो जो है वो इंतजार करेगी अपने आप ने कितने, 3 पीरियड्स तक, 3 हैज की मुद्दत, ओके। 3, अभी तलाक शुदा की इद्दत का पीरियड जो है वो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। अब हस्बैंड ने तलाक दे दिया तो वो औरत जो है वो क्या करेगी, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 3 पीरियड उसका क्या है, इद्दत है बहनों। अच्छा, अब इसके बीच में अगर वो कभी ले लेता है तो ठीक है, अगर 3 पीरियड्स गुजर गए यानी 90 डेज गुजर गए और वो तलाक बोल रहा है, तो फिर यहाँ तलाक बोल चुका है वो, ओके, तो यहाँ पे तलाक हो जाएगी। देखो बहनों, तलाक के मसले मसाइल बहुत बड़े हैं, ओके, बहुत डीप है। मैं यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आयतों को समझाऊंगी। कोई भी बहन ये आयतों को समझ के कोई फतवा पास नहीं करेगी, ओके। जो भी आपके मसले मसाइल है आपको जाके किसी मुफ्ती या किसी आलिम से पूछना होगा। जस्ट बिकॉज कि हमको ये आयत समझ में आ गई, हम वहां पे बैठ के तलाक हो गई, खुला हो गया, निकाह हो गया, ये सब नहीं बोलेंगे, ओके। हम सिर्फ बता सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं कि देखो भाई ये मामले में आप जाके किसी आलिम से पूछो, क्योंकि इसके बारे में आयतें गुजरी है। हाँ, तो ये बात हम समझ ले। अब देखो बहनों, यहाँ पे एक एक बात मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग गौर से सुनो, ओके। अब ये तलाक शुदा जो औरत है उसकी इद्दत क्या बताया गया, 3 पीरियड, ओके। अगर कोई औरत बेवा हो जाती है, उसका मर्द का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीने 10 दिन। हाँ, 4 महीने 10 दिन आएगा आएगा। मगर ये अगर फॉर्मूला समझ जाते हो ना बहनों, तो आयतें समझने में आसानी हो जाएगी। और खुला, अब खुला क्या है बहनों, खुला अगर एक औरत लेती है वो तलाक नहीं है बहनों, मतलब तलाक आदमी देता है, यहाँ पे औरत खुला ले रही है। हाँ, यहाँ पे क्या कर रही है, एक औरत खुला ले रही है, तो उसकी इद्दत कितनी है, 1 महीना। कितनी है, 1 महीना, ओके। तो ये 3 चीजों के बारे में मैं बता रही हूँ। तलाक, जो किसने तलाक ले ली उसकी इद्दत 3 पीरियड, किसी का मर्द मर गया, बेवा हो गई है तो 4 महीने 10 दिन,
अगर एक औरत खुला ले रही है तो उसकी इद्दत कितनी है? 1 महीना। ये समझ में आ गया? अब बहनों, ये सब बातें कब होगी? जब वो औरत प्रेग्नेंट नहीं होगी। कब होगी ये सब बातें? जब वो औरत प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत क्या हो जाएगी? जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक उसकी इद्दत है। जैसे कि अल्लाह ना करे, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आएगा, कि शौहर ने तलाक दे दिया, अभी मालूम पड़ा कि वही टाइम वो प्रेग्नेंट हुई, मतलब 2-3 महीने ही है, वो प्रेग्नेंट हो गई और शौहर ने भी तलाक दे दिया। हाँ, तो जब तक वो डिलीवरी नहीं करती तब तक उसका क्या है बहनों? इद्दत है। जैसे कि वो 6 महीना जो भी है, तब तक उसकी क्या होगी बहनों? इद्दत में रहेगी। इद्दत मतलब क्या? वो रीमैरी नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? वो शी कैन नॉट रीमैरी, उसकी इद्दत का पीरियड चल रहा है। ओके, अब वो कब रीमैरी कर सकती है? जब बच्चा होने के बाद। तो ये बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी अल्लाह ना करे बहनों, ओके, एक औरत जो है वो सुबह में बेवा हो गई, ओके, सुबह खबर मिली, अभी एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो कि सुबह में खबर मिले कि शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, ओके, अब शाम को डिलीवरी हो गई, शाम को इसको इतना टेंशन हो गया कि डिलीवरी हो गई, 6 महीने में भी हो जाती है, राइट, डिलीवरी हो गई बहनों, तो याद रखना उसकी इद्दत जो है वो खत्म। समझ में आ रहा है? बिकॉज क्यों? उसका बच्चा आ गया। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं गम और खुशी एक साथ नहीं होता। अब उस औरत को क्या करना है? खुशियां मनाना है। और अभी तो 40 दिन निफास के हैं, उसके बाद वो वापस से री मैरी कर सकती है। वो 4 महीना 10 दिन बैठने की जरूरत ही नहीं है, उसको गम करने की जरूरत ही नहीं है, उसको खुशियां मनाओ कि बच्चा हो गया। दिस इज अवर इस्लाम। कितना बेहतरीन, कितना प्यारा मजहब है, देखो बहन। समझ में आ रहा है? एक जान की कीमत हमारे इस्लाम में बहुत है बहनों। इसके लिए आता है कि अगर एक औरत जीना करके भी प्रेग्नेंट हो जाए तो वो बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकती, किसी हाल में भी बहनों बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। जीना से भी अगर वो बच्चा टिक गया, रेप से भी टिक गया, तो भी अबॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जान की कीमत हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा है बहनों। एक जान को बचाने के लिए हाल ही में एक सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था। ओके, एक मुसलमान डॉक्टर ने ही एक क्रिश्चियन आदमी को बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट किसका किया था? पिग का किया था। हम लोग बोलते हैं कि छी, ये कैसे हो सकता है, मगर एक जान बचाने के लिए, है ना, सामने हराम ही क्यों ना हो, शराब क्यों ना हो, सुअर का गोश्त ही क्यों ना हो, कोई मुर्दार क्यों ना हो, अगर जान बचानी है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाता है? हलाल हो जाता है। समझ में आ रहा है बहनों? ये जान की कीमत है। आज भाई भाई को मार रहा है, आज सुपारी दी जा रही है मारने के लिए। समझ में आ रहा है? आज जान की कोई कीमत ही नहीं है बहनों। और इस्लाम जो है वो क्या कहता है? एक को मारना पूरे नेशन को मारने, पूरे मैनकाइंड को मारने के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये इस्लाम को समझे बहनों, कितना बेहतरीन मजहब है हमारा इस्लाम। इसके लिए टेररिज्म, है ना, कि सुसाइड, मतलब बॉम्ब सुसाइड करते, बॉम्ब लगा के मारते, बेकसूरों को मारते, इनोसेंस को मारते, वो सब इस्लाम क्या करता है? मना करता है। अब यहाँ पे बहनों मैंने क्या कहा? इद्दत का पीरियड बता दिया मैंने सबको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि नेक्स्ट आयत उसी के बारे में आ रही है। क्या आ रही है? और नहीं है हलाल उसके लिए कि वो छुपाए जो पैदा किया अल्लाह ने उसके रहमों में, अगर है वो ईमान लाती अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। यानी अभी समझ जाओ, मर्द ने एक तलाक ही दिया था, ओके, एक पीरियड ही गए थे। अच्छा, ये तलाक भी कब देना है पता है बहनों? जब वो पाकी की हालत में, पीरियड्स की हालत में तलाक नहीं दे सकते बहनों, जब वो पाकी की हालत में है तब तलाक दे। एक ही घर में रहे बहनों, वो 3 महीना जो है ना, 3 पीरियड्स, वो उसी घर में रहेगी, क्योंकि हो सकता है एक ही घर में रह के कभी ना कभी हस्बैंड रुजू कर सकता है, कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। हम लोग में क्या होता है? औरत पहला घर से निकल के चले जाती है, उससे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है बहनों। कोई और कुछ बोलता है, कोई और कान भर देता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सुना है ना बहनों? सामने सामने रहोगे तो मोहब्बत भी आएगी, पछतावे में बोल देते तलाक, फिर पछताते हैं ना, पहली तलाक की है बहनों, 2 तलाक
के पहले पहले कभी भी रुजू कर सकता है, कभी भी उसको ले सकता है वो, तो एक ही छत के नीचे रहना है। अभी समझ जाओ, पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, तो औरत को चाहिए कि प्रेगनेंसी ना छुपाए, क्योंकि वो क्या है, वाजिब है, वार्निंग दी जा रही है औरत को कि डोंट हाइड योर प्रेगनेंसी। अब औरत क्या करती है, या तो वो हो सकता है कि अबॉर्शन करने के लिए छुपा रही है, या तो वो इसलिए छुपा रही है कि बता दूंगी तो भाई 9 महीने तक इद्दत चले जाएगी मेरी, है ना, इद्दत मेरी अभी 3 महीने नहीं है, 3 पीरियड्स नहीं है, अब पीरियड कहाँ से आएगा, प्रेग्नेंट हूं मैं, तो जब तक 9 महीने मेरी क्या हो जाएगी, इद्दत हो जाएगी, तो जानबूझ की औरत छुपा लेगी ताकि मेरा शौहर 3 बार तलाक दे दे और मैं फारिग हो जाऊं। या तो हो सकता है कि वो अपने शौहर को नहीं बता रही है ताकि वो बच्चा ही शेयर ना करे, वो चाहती होगी कि बच्चा मैं अकेली पाल लूं, मैं बताओ ही नहीं उसको कि मेरे पेट में बच्चा है। समझ में आ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, पर ये औरत का रीजन है। पर अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में कि तुम छुपा नहीं सकते, तुमको बताना ही बताना है अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो, अगर तुम बिलीव करती हो अल्लाह और आखिरत के दिन पर। ओके, और जो उनके शौहर है वो ज्यादा हकदार है कि वो उनको ले इस मुद्दत में, वो क्या करे, उनको वापस ले, वो ज्यादा शौहर हकदार है। अब क्या होता है ना, लड़की के माँ बाप बीच में आ जाते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें देख लेंगे, हमें पाल लेंगे, भाई लोग भी आके खड़े, सारे लोग भी आ जाते हैं, पूरी फैमिली अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। नहीं, अगर पता चल गया कि प्रेगनेंसी है और भी 3 तलाक नहीं हुई है, 1-2 तलाक में ही मालूम हो गया कि प्रेग्नेंट है वो औरत, तो फौरन उसको क्या करे, वापस से ले, वो शौहर ज्यादा हकदार है। अभी यहाँ पे साले लोग, सास ससुरे, कोई भी मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, शौहर ज्यादा हकदार है, मगर क्या शर्त है कि वो दोनों इरादा करते हैं इस्लाह करने की, यानी वो मियाँ बीवी जो है वो दोनों इरादा करे कि हाँ भाई, हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, झगड़े हो रहे थे, चलो जो हो गया सो हो गया, अब बच्चा प्रेग्नेंट हूं मैं, तो चलो अभी हम लोग सही हो जाते, अच्छे हो जाते। तो मियाँ बीवी दोनों इरादा करे इसकी इस्लाह करने की, दोनों होना चाहिए बहनों। खाली शौहर गलती मान के नहीं नहीं अभी आ जा तू, ये वो बच्चे के लाइन से बोल रहा है, नहीं, औरत का भी मानना जरूरी है बहनों। अब औरत, शौहर तो बुला रहा है पर औरत बोलती है नहीं मेरे को नहीं चाहिए रिश्ता, ये प्रेग्नेंट हो गई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पता है तेरे बारे में, तू सिर्फ चुपके बोल रहा है, पर तेरी आदत मेरे को मालूम है। तो यहाँ शौहर बुला रहा है, बीवी नहीं आ रही है, तो ये बीवी को पता है ना क्या सही है क्या गलत है, तो यहाँ पर बीवी खुला ले सकती है। अब शौहर तलाक नहीं देगा, शौहर तो बोल रहा है आजा, बीवी नहीं आ रही है, तो वो तो तलाक नहीं दे रहा है, अब बीवी क्या करेगी, उसको खुला लेना पड़ेगा। खुला कैसे लेगी, समझ जाओ, शौहर ने 10 लाख रुपए दिया था मेहर, अच्छा, अब बीवी क्या करेगी, कुछ उसमें से देके खुला ले लेगी, मतलब पूरे 10 लाख देने की जरूरत नहीं है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कुछ भी, मतलब पूरे 10 लाख नहीं, कुछ भी थोड़ा देके बोलेगी कि भाई मेरे को तो नहीं रहने का है, मेरे को खुला चाहिए। तो अल्लाह ताला ने औरत को कितनी आसानी दी है, देखो पूरा देने की जरूरत भी नहीं है। शौहर को चाहिए कि पूरा मेहर दे, मगर औरत क्या कर सकती है, कम भी दे सकती है। ये आएगा, आए तो मैं आएगा इंशाल्लाह, ओके। और उसके लिए है मानिन उसके जो उस पर है अच्छे तरीके से। अब इसका क्या मतलब है बहनों, समझ जाओ, अल्लाह ताला कहते हैं और उनके लिए है, यानी उन बीवियों के लिए है मानिन मिसल उसकी जो उनके जिम्मे है भले तरीके से, यानी औरत को भी चाहिए कि वो क्या करे बहनों, शौहर का रिस्पेक्ट करे, ओके। और आदमी को भी चाहिए कि औरत के पूरे हुकूक को अदा करे, खासकर ये औरतों के लिए है, कि शौहर जो है वो क्या करे, उनके नान नफके का, उनके खाने पीने का, उनकी क्लोथिंग का, उनके कपड़े का, पूरे ऐसे चीजों का वो क्या करे, ख्याल रखे, उनके हुकूक को अदा करे। कैसे, अच्छे तरीके से, है ना, भले तरीके से, यानी उनके हुकूक को अदा करे। और मर्दों के लिए है उन पर एक दर्जा, यानी जो मर्द लोग है ना, उनके ऊपर क्या है, एक दर्जा है। अब ये आयत को लेके बहुत सारे आदमी लोग बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट करते हैं कि देखो अल्लाह ने क्या बोला, हम लोग का ज्यादा दर्जा है तुम लोग के ऊपर, हालांकि एक ही दर्जा है, ज्यादा दर्जा नहीं है, सिर्फ एक ही दर्जा है। पर वो लोग यहाँ पर भी कुछ आदमी लोग है ना बहुत ओवर स्मार्ट करते हैं कि देखो हम लोग का ज्यादा दर्जा है, पर किस चीज का दर्जा है, किस चीज का दर्जा है वो समझ में नहीं आता है, जिम्मेदारी का,
समझ में आ रहा है कि तुमको है ना कमाना है, हमको देना है, नान नफका सब कुछ देना है, जिम्मेदारी का तुमको एक दर्जा दिया, यानी कि जिसको दर्जा एक ज्यादा दिया उसका अकाउंट भी होने वाला है, उसका हिसाब भी होने वाला है। ये उनको समझ में नहीं आता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं ना, इनको बोलना कि हाँ खुशियां है, एक जो तुमको दर्जा दिया है वो काय का दर्जा दिया है कि तुम जिम्मेदार हो, तुम प्रोटेक्टर हो, तुमको कमाना है, हमको खिलाना है, हमको कुछ नहीं करना है, करेक्ट। हमको जाके ये सब इतना हार्ड वर्किंग नहीं करना है, हार्ड वर्किंग की जिंदगी तो उसकी है बेचारे की। और उसको इतना ही नहीं, उसका हिसाब किताब भी होगा कि भाई एक जिम्मेदार थे तुम, एक दर्जा ज्यादा था, तुम अपनी बीवियों को सही से देखे कि नहीं, नान नफका दिए कि नहीं, क्लोथिंग और जो प्रोविजंस है वो बराबर दिए कि नहीं। समझ में आ रहा है। और अल्लाह ताला क्या है, बहुत जबरदस्त खूब हिकमत वाला है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो मर्द जो है ना बहनों, इबादत के लाइन से, अखलाक के लाइन से, ईमान के लाइन से हम सब बराबर है। कोई नेकी ऐसी नहीं है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो सुबह अल्लाह पढ़ेगा तो 20 नेकियां, तुम सुबह अल्लाह पढ़ोगे तो 10 नेकियां, ऐसा नहीं है। वो नमाज पढ़ेगा तो 100 नेकियां, तुम नमाज पढ़ोगे तो 50 नेकियां, ऐसा नहीं है, करेक्ट। नेकियों में, इबादत में, तकवे में, अखलाक में कहीं ज्यादा नहीं है बहनों। अगर एक ही दर्जे में कहीं ज्यादा है तो वो जिम्मेदारी है कि उनको हमको है ना कमा के देना है, और इसकी भी उनको पकड़ है। समझ में आ रहा है। हिसाब किताब होगा, अगर सही से नहीं देखेंगे तो इसका हिसाब किताब भी है, मतलब दे आर अकाउंटेबल, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ पे क्या करना है, खुशियां हमको मनाना है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं। तलाक जो है वो 2 बार है बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने कहा ना कि वो पाक हो रही है तलाक दे रहा है, फिर पाक हो रही है तलाक दे रहा है, मतलब ये 2 टाइम है कि वो उसको वापस से ले सकता है। अगर ले ले तो ठीक है, अगर नहीं लेगा बहनों तो उसकी मर्जी है ना, वो फिर तलाक हो जाएगी। और एक बार तलाक हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। तो तलाक सिर्फ 2 ही बार है। तीसरे बार तलाक जब हो जाती है तो दे कैन नॉट टेक देम बैक, ये बताने का मतलब है। ओके। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो रोक लो उन्हें भले तरीके से, या तो रुखसत करो भले तरीके से। अगर तुम उनको रोक भी रहे हो तो इज्जत से करो, ऐसा नहीं कि बेइज्जती कर रहे कि मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, मैं तेरे पे ये कर रहा हूँ, नहीं। और शर्त रख के नहीं ले रहा है कि अभी देखा मैं तेरे को ले तो रहा हूँ पर तू सुबह सुबह जल्दी उठेगी, तू ये करेगी, तू वो करेगी, ये सब शर्त रख के नहीं ले सकता वो। समझ में आ रहा है। अगर ले भी रहा है तो अच्छे तरीके से ले, और अगर रुखसत भी कर रहा है तो भले तरीके से ले। क्योंकि कितने लोग जो है वो जब छोड़ देते हैं तो उसको इतना बदनाम करते, इतना बदनाम करते, वो कहीं पे रीमैरी नहीं कर सकती बहन, तो उसको बदनाम भी नहीं करना है। देखो अल्लाह ताला खुद ही कह देगा आयतों में इंशाल्लाह। और नहीं हलाल है तुम्हारे लिए कि तुम जो है वो क्या करो, तुम ले लो उससे जो तुमने उसको अता किया कुछ भी, यानी जो कुछ भी तुमने मेहर अता किया या जो कुछ भी तुमने गिफ्ट उसको दिए, अब जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम उससे कुछ भी वापस नहीं ले सकते। तुमने उसको जो भी मेहर दिया, जो भी गिफ्ट दिया, भले वो सोने के पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो, सोने का पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो, तुम उसके पास से कुछ भी वापस नहीं ले सकते। ये किसके लिए है, अल्लाह ताला कहते हैं कि किसका है, कि अगर वो दोनों जो है वो क्या खौफ रखते हैं कि वो नहीं कायम कर सकते अल्लाह के हुदूद को, अल्लाह के जो शरीयत है, जो फैमिली लाइफ है। अगर उनको लगता है कि हम लोग दोनों इस फैमिली लाइफ को आगे लेके नहीं चल सकते, मैं तुमको खुश नहीं रख सकती, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते। एक सहाबा थे ना, हमारे नबी के मुंह बोले बेटे थे, है ना, जैद तरानू, उनकी शादी बहुत अच्छी औरत से हुई थी, जैनब, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नाम गलत बोल रही हूँ तो माफ करना। तो उन्होंने भी क्या किया, शादी निकाह तो हो गया मगर समवेयर और दी अदर में डिफरेंसेस थे। बिकॉज जैद तलानू कहीं ना कहीं गुलाम थे, और ये कहीं ना कहीं एक क्वीन जैसी, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब ये हाई स्टेटस की थी, ये लो स्टेटस का था। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के हक को अदा नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों ने तलाक दिए, तलाक हो गई इनके बीच में। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। इसको बढ़ा चढ़ा के ये मना नहीं करना है बहनों। यहाँ पर भी देखो ये लोग इनको लग रहा है कि हम एक दूसरे के हक को अदा नहीं कर सकते। ओके। तो यहाँ पे अगर ये दोनों डरते हैं कि वो नहीं कायम कर सकते दोनों
अल्लाह की हुदूद को, तो नहीं है कोई गुनाह उन दोनों पर उसमें कि क्या दे, वो औरत जो है वो मेहर दे दे उसके माल से। यानी अगर अगर वो औरत को भी लग रहा है कि हाँ अब ये आदमी तो तलाक दे रहा है, और अगर वो नहीं दे रहा है, या देखो ये खुला का आ गया बहनों, ये जो है ना ये खुला के बारे में आ गया कि अगर एक औरत को भी लग रहा है कि हाँ मैं नहीं रह सकती, मैं इसके हक को अदा नहीं कर सकती, समवेयर और दी अदर डिफरेंसेस है, होता है बहनों, लाइफ 5 उंगलियां सेम नहीं होती है ना, तो होता है ये। तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर वो औरत क्या कर सकती है, जो भी उसको उसने मेहर दिया है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा दे के, देखो ये कितना टेंशन और कितना डेंजर है बहनों। आदमी तो क्या एक तलाक देगा पाक होएगी, दूसरा तलाक देगा पाक होएगी, कभी ना कभी वापस ले सकता है, पर एक औरत कभी भी, आदमियों को बहुत डरने का है, कभी भी वो कर सकती है कि ये ले भाई तूने मेरे को जो दिया था ना, आजकल तो बहनों 10 लाख 20 लाख का नहीं जमाना है ना, हम लोग तो हजारों, कोई 786 रुपीज लेता है, कोई 5,000 में महल लिया, वो औरत 2,000 रुपए दे के बोल सकती है कि ये ले भाई तेरा पैसा ले ले, मेरे को नहीं रहने का, मैं नहीं तेरा हक अदा कर सकती। कहीं ना कहीं हम लोग की लड़ाइयां ही हो रहे, झगड़े ही हो रहे, और इससे हम दोनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए खराब है। तो ये भी वो कर सकती है बहनों, ये कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अगर वो औरत को लगता है कि वो शौहर के हुकूक को अदा नहीं कर सकती, तो वो मेहर में से कुछ हिस्सा दे के वो अलग हो सकती है, वो खुला ले सकती है। 1 महीना उसकी इद्दत का पीरियड है बहनों, उसके बाद वो रीमैरी कर सकती है। और अगर समझो 1 महीने के बाद अगर कभी भी उसको लगता है कि नहीं मेरा पहला शौहर ही सही है, तो वो वापस से उसी शौहर से शादी भी कर सकती है। यहाँ पे खुला का एक फायदा ये है बहनों, तलाक अगर 3 बार हो जाती है तो वो आगे की आयत में आएगा कि क्या करना चाहिए, मगर खुला में ऐसा नहीं है। खुला में क्या है, औरत जो है वो उसी मर्द से वापस से शादी भी कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हलाला का आएगा, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बहनों ये सब मैं आपको वापस से समझा देती हूँ, मैं सिर्फ आयतों को समझा रही हूँ, इसके अंदर जो डीप मीनिंग्स है प्लीज किसी आलिम और मुफ्ती से पूछिएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कोई तजावुज करे, यानी जो कोई जो है वो क्या करता है, हदों को अल्लाह की हुदूद को जो है वो ट्रांसग्रेस करता है, अच्छा उससे क्या करता है, तजावुज करता है। यानी कि अल्लाह कहते हैं कि जो कोई, यहाँ बराबर जा रही हूँ क्या मैं, हाँ, जो कोई तजावुज करे अल्लाह के हुदूद को, तो फिर यही लोग क्या है, जालिम है। ओके, ऐसे लोग क्या है, जालिम है। तो बहनों अल्लाह के हुदूद को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा जो भी उसके हक है उस मियाँ बीवी के हक को क्या करे बहनों, अदा करे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत भी कर लेती हूँ बहनों। फिर अगर उसका शौहर, अब जो है बहनों 3 तलाक हो चुकी, अब उसके बारे में आ रहा है, हाँ 3 तलाक हो चुकी। ओके, अभी शौहर जो है वो क्या कर रहा है, फिर अगर जो है वो शौहर तलाक दे दे, 3rd टाइम तलाक दे दे, ओके, तो नहीं है हलाल उस पर क्या, वो औरत अभी क्या हो गई, उसके लिए हराम हो गई, 3 तलाक हो गई, अब वो औरत हराम हो गई। मगर अगर हलाल करना है तो क्या तरीका है, यहाँ तक कि वो औरत निकाह कर रहे किसी और आदमी से। समझ में आ रहा है, ये हलाला जो है उसके बारे में आ रहा है बहनों। देखो बहनों ये सब प्लानिंग वाला हलाला नहीं है, ओके, ये सब अपने आप हो रहा है। आजकल जो प्लान करके हलाला करते हैं, करवाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन सब पर अल्लाह की लानत है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। ओके, अब यहाँ पे शौहर ने 3 तलाक दे दिया, अब वो औरत जो है वो हो गई उसकी नामहरम हो गई वो, अब वो औरत जाके किसी और शौहर से शादी कर रही है। अब वो दूसरा शौहर वो अपने आप मर जाता है, नेचुरल मर जाता है, या वो अपने आप तलाक दे देता है। ओके, वो तलाक दे देता है। अब वो औरत जो है वो पहले शौहर के लिए क्या हो गई, हलाल हो गई। ये कैसा हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आजकल ऐसे मौलाना लोग हैं जो ये हलाला करते हैं बहनों, अग्रीमेंट करके सब एक रात का निकाह करते, नेक्स्ट दिन तलाक करके पहले शौहर से शादी करवाते। ये सब क्या है, हराम है। ओके, फिर अगर
وہ شوہر یعنی کہ جو سیکنڈ شوہر تھا وہ طلاق دے دیتا ہے تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر کہ وہ کہ پہلا شوہر اور وہ وائف کیا کر لے, ایک دوسرے کے پاس ریٹرن ہو جائے, رجوع کر لے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اللہ کے حدود کو قائم کر سکتے ہیں. یعنی پہلے بھی تو ساتھ میں تھے, ہاں, پہلے تو کیا سمجھے کہ ہم اللہ کے حدود کو جو ہے وہ قائم نہیں کر رہے تو طلاق دیے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ واپس سے یہ بات بول رہے ہیں کہ یار یاد رکھو, تم لوگ بھولنا نہیں کہ اگر تم کو لگتا ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے اللہ کے جو حدود ہے اس کو اگر تم کو لگتا ہے تم قائم کر سکتے ہو تو ہی نکاح کرو. یہ کھیل کود تماشا نہیں ہے کہ آج کر رہے کل وہاں طلاق ہو رہی ہے, پھر واپس کر رہے پھر طلاق ہو رہی ہے, ایسا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عورت سمجھ جائے کہ ہاں میری غلطی تھی, ہے نا, میری غلطی تھی, میرے کو نہیں کرنا چاہیے تھا, میری غلطی تھی, پہلا شوہر ہی اچھا تھا. کبھی کبھی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے, ٹھوکر لگنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی پہلا شوہر ہی اچھا تھا. ہو سکتا ہے پہلا شوہر بھی سوچے کہ ہاں وہی عورت اچھی تھی, ہے نا. تو اگر جو ہے یہ سب سوچ سمجھ کے اللہ کے حدود اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم پورے کر سکتے ہیں تو ہی وہ لوگ کیا کرے, شادی کرے. یہ اللہ کے حدود ہے, وہ واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے. کون سی قوم کے لیے؟ جو علم رکھتی ہے, جو سمجھدار ہے, جن کو پتا ہے. اوکے, تو یہ سب باتوں کا بہنوں بہت دھیان دینا ہے. اوکے, لاسٹ آیت کر لیتی ہوں بہنوں, سوال جواب میں واپس سے سمجھا دوں گی. اوکے انشاءاللہ. اب آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائے ان کی مدت. اوکے, اب سمجھ جاؤ بہنوں, وہ پہنچ رہی ہے ان کی مدت تک, تو تمہارے کو تیسرے طلاق سے پہلے آپشن ہے کہ یا تو تم ان کو جو ہے وہ ان کو روک لو اچھے طریقے سے, مطلب ان کو واپس لے لو اچھے طریقے سے, یا تو رخصت کر دو اچھے بھلے طریقے سے. اور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور نہیں تم روکو ان کو مگر کیوں, تکلیف پہنچانے کی نیت سے کہ چلو بھائی اس کو میں واپس سے لے لیتا ہوں. بیکاز بہنوں وہ زمانے میں بہت ہو رہا تھا, 100 طلاقیں لوگ دیتے تھے. یعنی کہ طلاق دیتے, مدت ختم ہو نہیں جاتی, پھر طلاق دیتے. سمجھ میں آیا؟ لوگ لیتے بھی کیوں تھے معلوم, واپس صرف ستانے کے لیے, اس کو ضرر پہنچانے کے لیے, اس کو تنگ کرنے کے لیے, اس کو ہے نا ایک دم بولتے نا ایک دم جو ہے اس کو ڈپریس کرنے کے لیے عورتوں کو وہ لوگ واپس لیتے تھے. تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نہیں, عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, عورت کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرو, اس کو تنگ مت کرو, اس کو ہرٹ مت کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے کہ اگر تم روک بھی رہے ہو تو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرنا ہے, تاکہ تم زیادتی کرو. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ تحقیق کہ وہ اپنے آپ پہ کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. کتنی باریکی, کتنا کھول کھول کے اللہ بتا رہے, یعنی آدمیوں کو نہیں چھوڑ رہے, عورت کے معاملے میں ذرا دیکھو بہنوں کیا پروٹیکشن, کیا اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے. یہ آیتیں کیا بتا رہی ہے بہنوں, ہمارے لیے کون لڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ, وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ بول رہا ہے کہ بھائی اگر لینا بھی ہے تو یاد رکھنا اس کو تنگ نہیں کرنا. یہاں پہ والدین کیا بولتے ہیں کہ جیو مرو وہیں پہ رہو, ہے نا, رضا نکلے تمہارا وہ گھر سے پر آنا نہیں واپس. اللہ کیا بول رہا ہے کہ نہیں, عورت کو تکلیف نہیں دینا, ہاں, عورت پہ ظلم نہیں کرنا, اور اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تم اپنے آپ پہ کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. اور نہیں تم لو اللہ کی آیتوں کو کھیل مذاق کی طور پہ مت رکھو, ہے نا, اس کی آیتوں کو جو ہے وہ کھیل مذاق سے نہ لے بہنوں. لا از لا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو, اس نے تم کو مسلمان بنایا, اسلام کی دولت دی تم کو, اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے تم کو کس سے, کتاب میں سے, قرآن اور حکمت سنتیں, اور اس نے ہم کو کیا کیے, نصیحت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو, ہے نا, ساتھ اس کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا کہ بھائی چلے گا, ہاں, طلاق دو, کھلا لو, کچھ بھی کرو, ہم لوگ کو سامنے والے کو ستانے کا ہے, یہ سب مت کرنا, ہے نا. اور صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو
जिस अल्लाह ने तुमको ईमान की दौलत से नवाजा है, कुरान और सुन्नतें दिए हैं, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो जो दे सकता है वो ले भी सकता है ना। और अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि वो तुमको क्या करता है, एडमोनिश करता है, नसीहत करता है साथ इसके। और डरो, अल्लाह से डरो। डर खौफ रहेगा तो एक दूसरे के हक को अदा करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा चलेंगे, है ना। डर रखो अल्लाह का और जान लो बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा सबक था बहनों। कल इंशाल्लाह 6 आयतें कर लेंगे, यानी आयत नंबर 232 से 32, 33, 34, 35, 36, 37, हाँ 237 तक इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा सबक था। तो पहले दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब क्यों हो रहा है पता है बहनों? क्योंकि हमारे पास इल्म की कमी है। हम हमारे बच्चों को इतना एजुकेशन सिखाते हैं बचपन से, प्री केजी स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, हर चीज हमारे बच्चे को आना चाहिए, है ना। कॉलेज की सब पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं कहती, पर इतना हम लोग उसमें फोकस करते हैं, इतना उसको तरजीह और इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी खुद की पढ़ाई हम पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, है ना। हमारे 5 टाइम की नमाज है बहनों, जो दिन में 5 टाइम की जाती है, हमको उसका भी तरीका सही से नहीं पता कि मेरी 5 टाइम की नमाज सही है कि नहीं, मेरा ज़कात मैं दे रही हूँ वो सही है कि नहीं, मेरे रोजे सही है कि नहीं। ये जो तलाक और निकाह बहनों, हमारे लड़के लड़कियों को इसके मसले मसाइल बताए समझाए। पिक्चरों में देखते हैं तलाक दे सकते हैं तो कोई भी कैसा भी तलाक दे देता है बहनों। याद रखिए ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। ना बच्चियों को पता है सबर क्या होता है, कैसा चलना है, ना लड़कों को कुछ पता है। ऐसा न्यू जनरेशन आ चुका है बहनों। नाम मतलब बोलते ना, बिना मतलब के तलाक हो रही है बहनों, बिना मतलब के। यानी कि मैंने पढ़ी हूँ ये बात, मैं आपको जरा बताऊंगी कि एक निकाह हो रहा था बहनों। ओके, निकाह हो गया और निक्के के बाद खाना खाने बैठे हैं दूल्हा दुल्हन टेबल पे। ये रियल वाकया है बहनों, न्यूज़पेपर में आया था। ओके, और ये कहीं तो अरबों कंट्री में था कि पता नहीं कहाँ था। और मियाँ बीवी बैठ के खाना खा रहे। ओके, अब खाना खाते वक्त मियाँ ने बीवी से कहा कि तुम्हारे पास जो सलाद का प्लेट है वो मुझे प्लीज उठा के दो। क्या बात थी देखो बहनों, कितनी सिंपल बात कि तुम्हारे पास जो सलाद का प्लेट है मुझे दो। तो बीवी ने फौरन कहा कि मैं क्यों दूं, वाई शुड आई। देखो क्या सिखाती है वेस्टर्न कंट्री, कि औरत को झुकना नहीं, औरत का ऐसा नहीं वैसा, राइट एक साथ, है ना। क्या सिखा के रखे हैं कि वो क्या बोल रही है कि मैं क्यों दूं, तू खुद उठा ले, उसने ये डायलॉग कहा। तो वो, और वो आदमी जो था ना वो एकदम हैरान परेशान हो गया। उसने तो कहा कि भाई जो लड़की मुझे खाली एक सलाद का प्लेट उठा के नहीं दे सकती, वो कैसी निकलेगी सोच के देखो फ्यूचर में। और उसने तब का तब उस औरत को छोड़ दिया, तलाक हो गई बहन। मतलब समझ में आ गया ना आदमी को कि ये भी एरोगेंट है, ये भी ऐसा है। मतलब कहीं ना ये एडजस्ट किया, कहीं ना वो एडजस्ट करी, और वहीं पे शादी के दिन खाना खाने के टाइम और तलाक हो रही है बहनों। ये हालात हो चुके हैं। तो लड़का लड़की बहनों दोनों को हम ये सब मसले 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 मसाइल मोटे मोटे समझाए कि तुमको भी एडजस्ट, देखो शादी का नाम ही एडजस्ट है बहनों, है ना। सबर बर्दाश्त करना इजी नहीं है बहनों। हम लोग लाइफ टाइम किसी और मतलब माँ बाप के घर में रहते हैं, अचानक से लाइफ बदल जाती है बहनों, है ना। हमारी लाइफ ऐसा लगता है हमारी लाइफ ही नहीं है, हमारी रूटीन बदल जाती है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, और किसी के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कितनी लड़कियों के लिए जो डिप्रेशन में जा रहे हैं बहनों। मुझे ऐसे लड़कियों के बारे में पता है जो शादी के बाद डिप्रेशन में चले गए। पूछा गया क्यों, तो बोले कि हमारे घरों में नॉनवेज पकता है, यहाँ नॉनवेज नहीं पकता,
ہمارے گھروں میں ایسا تھا, یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں پہ ویسا ہے, یہاں پہ ایسا ہے. یعنی کچھ بھی مطلب بہنوں کوئی صبر نہیں, کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں, کوئی برداشت نہیں کر رہا ہے. اور مطلب نا کہ ایسے ہی طلاق ایسے ہی کھلا ہو رہی ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, کوئی سیریس میٹر ایشو نہیں ہے, مگر نہ لڑکا ایڈجسٹ کر رہا ہے نہ لڑکی ایڈجسٹ کر رہی ہے. یہ حالات ہو رہے ہیں بہنوں آج. تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو دین کی تربیت دو. ایک لڑکا لڑکی تھے بہنوں جو کاؤنسلنگ کے لیے آئے تھے, اوکے, کسی مسلمان کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تھے, ہسبینڈ اینڈ وائف. تو پوچھا گیا کیا ہوا, تم لوگ کیوں آئے؟ تو کہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے, ہم لوگ کو ہے نا ایک دوسرے کو چھوڑنے کا ہے. تو جو کاؤنسلر تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے کو علم کی بہت ضرورت ہے, تم لوگ نالج حاصل کرو. تو لڑکا لڑکی ہنس اٹھے, یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہنس اٹھے, بولے ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں, تم ہم کو کیا بول رہے ہو, کیا علم کی بات کر رہے ہو, یہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں, اور تم ہم کو بول رہے, ہاں تم ہم کو بول رہے یہ سب. تو اس نے کہا, وہ کاؤنسلر نے کہا کہ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کون سا, وحی الہی ہے نا, یہ علم کی بات کر رہا ہوں میں. تم جو ڈاکٹرز ہو نا وہ ایک اسکل ہے, وہ دنیا کی پڑھائی ہے, جو سب پڑھ رہے پر اصل دین کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. دین سے آج بہت لوگ دور ہے, دین کا نالج ہی نہیں ہے, اینڈ دیٹس the ریزن آج یہ سب حالات ہو رہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پلیز اپنے بچوں کو تربیت کرے, اپنے بچوں کو سکھائے بیوی کے حقوق, بیوی شوہر کے حقوق, عورت کا کیا مرتبہ ہے, مرد کا کیا مرتبہ ہے, یہ سب بتانا ضروری ہے بہنوں. 4 ٹائر ہوتے ہیں تو کار چلتی ہے, اگر نہیں رہے گی تو کار نہیں چلے گی بہنوں. اسی طرح میاں بیوی جب ساتھ رہیں گے تو فیملی کی کار چلے گی, ورنہ بچوں کا کیا ہوگا بہنوں. آج بچے جو ہے وہ کیوں خراب ہو رہے, کتنے بچے ڈرگ ایڈکٹس ہو رہے, کتنے بچے جو ہے وہ خراب اور برباد کیوں ہو رہے, کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خالی ماں باپ کی لڑائیاں دیکھتے. مجھے کل پرسوں ہی ایک بچی کا مطلب میسج آیا, وہ مجھے بول رہی ہے کہ میرے ماں باپ کی لڑائی دیکھ دیکھ کے میرا بھائی گالیاں سیکھ رہا ہے, میرا بھائی ویسا ہی بات کرنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں تو بڑی ہوں, میں کالج گوئنگ ہوں, میں تو پتا ہے, مگر میرا بھائی چھوٹا ہے, اسکول جاتا ہے, وہ سب سیکھ رہا ہے میرے ماں باپ سے. سوچو بہنوں, اگر ماں باپ گھر میں لڑتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بچوں پر ہوتا ہے. سوچو بہنوں, ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے, آخرت کے لیے. آخرت کی اتنی بڑی گھاٹی, اتنی بڑی محنت, اتنا بڑا کچھ ہے آخرت میں, اور اس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے, یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں, بربادیاں سب ہو رہے ہیں بہنوں. یعنی اصل جو کیا ہے, ہم لوگ کیوں آئے ہیں یہ بھول گئے, یا میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات میں لڑ رہے کہ تو نے یہ نہیں کیا, تو نے ویسا نہیں کی, تو ایسی تو ویسی, اسی میں لڑ رہے. وہ بچے کیا ہوں گے, وہ نسل آگے کیا بڑھے گی, کیا فیوچر ہوگا, سوچ کے دیکھو. اگر میاں بیوی دین پر رہتے ہیں, دین پر چلتے ہیں, دیندار بچے ہوتے ہیں, تو دیندار نسل ہی آگے جائے گی بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے بہنوں. ہم لوگ کہیں نہ کہیں شیطان کی غفلت میں آ چکے. آج پتا ہے بہنوں, میں 10-15 سال پہلے کی بات بول رہی ہوں. ایک لائر بتا رہا ہے کہ پتا ہے مسلمانوں میں طلاق کا ریشیو کتنا زیادہ ہو گیا ہے. صرف وہ بتا رہے تھے کہ کوئی تو بنگلور سٹی کے بارے میں, کہ دن کے جو قاضی صاحب ہوتے ہیں نا, دن کے 10 طلاق کے جو ہے وہ پیپرز آتے. طلاق اتنے سارے طلاق کے پیپرز آ رہے ہیں بہنوں. آدمی دوسری عورت کے پاس جا رہا ہے, عورت دوسرے آدمی کے پاس جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں میرٹل افیئرز ہو رہے ہیں. کیوں ایسا بہنوں؟ اگر آخرت کی فکر ہوگی, آخرت کی تیاری ہوگی, آخرت کی سوچ ہوگی, تو کبھی یہ سب جگہ پہ ہمارا دھیان جائے گا ہی نہیں. اور ہمارا دھیان کہاں جا رہا ہے بہنوں, یہ سب فضول اور بیکار کی کاموں میں. آج یہ بے حیائی اور فحش کام اتنا ایزی اور آسان ہو چکا ہے, اتنا فری ہو چکا ہے کہ لڑکی ایکسپیکٹ کرتے کہ ان کی بیویاں ایسے ہو, بیویاں ایکسپیکٹ کرتی کہ لڑکے ایسے ہو. اور کہیں نہ کہیں جب وہ ایکسپیکٹیشنز پورے نہیں ہوتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینا نہیں چاہتے. کہیں نہ کہیں وہ دنیا کو سامنے رکھ کے چل رہے, حالانکہ سامنے کس کو رکھنا ہے, آخرت کو اور دین کو رکھنا ہے.
تو यहाँ पे जितने भी बहनें बैठी हैं, वो प्लीज खुद भी और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बहुत समझाए बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं स्टॉप